students. Welcome to the channel Bioverse with Pallavi, your go to destination for mastering biology with the conceptual clarity and smart preparation for boards and NEET examination. So, let's get started. Today, we are going to discuss Chapter 1 The Living World for Class 11th. In this, we'll understand and know about the scientist Ernst Mayr, what is life and what are the characteristics of living beings. Ernst Mayr was born in 5th of July in Kempten, Germany. He had studied in the Harvard University as the evolutionary biologist and was been called as the Darwin of the 20th century, as he was among the 100 greatest scientists of all times. He has been also been assuming the title of Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. He had nearly a career of about 80 years span in which he had done research in ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. He had single handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is valid till today. He also pioneered the currently accepted definition of the biological species. Meir was been awarded the very prestigious award known as the Triple Crown of Biology, the Balzan Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994, and the Crafoord Prize in 1999. He died at the age of 100 in the year 2004. Now the question is, why is Mayr called as the Darwin of the 20th century? So we must be knowing that Darwin was the one who gave us the idea of evolution via the natural selection. And Mayr, he did what? He had integrated the idea of genetics that was not been done by Darwin. So he integrated the idea of the genetics, giving a stronger foothold and scientific foundation for evolution. Therefore, he was been said as the architect of the modern synthetic theory. Now, this modern synthetic theory of evolution is being propounded by a number of the scientists who are in favor of the Darwin's work. It is just that they have incorporated the genetics into it. So the main propounder of that was Ernst Mayr. He had also given us the biological concept of species. Now, what does the biological concept of species tells us? It tells us that a species is a group of actually potentially interbreeding natural population that are reproductively isolated from one another. And together with that, he has also explained us speciation, and he emphasized on the geographical isolation as one of the concept in the formation of the new species. So because of these reasons, he was known as the Darwin of the 20th century. Now, what is life? Life is a complex organization of molecules that express themselves through chemical reactions, जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस और अडेप्टेशन और बहुत सारी चीज़ें शो करते हैं. तो लाइफ का अगर हम एग्जाम्पल समझना चाहें कि लाइफ कैसे आती है, कैसे केमिकल इंटरेक्शन की हम बात करें, तो एवरीवन मस्ट हैव स्टडीड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल. दैट वाज द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो दिया था सिंगर और निकोलसन ने. और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं. अब ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब क्या है कि इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट लगा और वो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास लिपिड के साथ अटैच हो रहा है. टुगेदर दे आर मेकिंग अप द ग्लाइकोलिपिड. ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड बन गए, बट व्हाट इज़ देयर फंक्शन? तो इनका फंक्शन ये है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल सिग्नलिंग. एक दूसरे से सेल को इंट्रैक्ट करने में मदद कर रहे हैं.
इसी तरीके से यू आर हैविंग ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो in the same way, what is going to happen? This carbohydrate gets combined with the protein to form the glycoproteins. इनका काम होता है सेल को रिकॉग्निशन कराना कि भाई हमारे पास जो सेल आ रहा है ये मेरी ही बॉडी का सेल है या इट इज़ द सेल दैट इज़ कमिंग फ्रॉम सम अदर फॉरेन प्लेस. तो हमें इस तरीके से चीज़ों के बारे में पता चलता है. देन अनदर थिंग इज़ कि इसी तरीके से बेटा जब व्हेन वी टॉक अबाउट एटीपी, एटीपी इज़ व्हाट? इट इज़ अ हाई एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड. तो जब हमारे पास हाई एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड है, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि हमारे पास जब ब्रेक डाउन होता है एटीपी का, सो वी गेट एडीपी प्लस पीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और इसके ब्रेकडाउन से हमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज रफली गोइंग टू बी 30.5 किलो जूल. तो हम मान लेते हैं कि इस तरीके से लाइफ का इंट्रैक्शन होता है. इसी तरीके से लेट अस सी वी हैव राइबोसोम्स. ये जो राइबोसोम्स हैं वी नो दैट कि राइबोसोम का एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है. तो इन लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के अंदर वी आर हैविंग द राइबोसोमल आरएनए. तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ इंटरैक्शन of the chemicals that is taking place that helps in sustaining the life on earth. So इस तरीके से we talk about life exist करती है. Now, who are living beings? Living things or the organisms are highly organized life forms that consume the energy to survive, grow, adapt and reproduce. तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूनिसेल ऑर्गेनिज्म से हमारे पास कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स. तो ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट कि लाइफ है तो मतलब केमिकल इंटरैक्शंस हैं. अगर केमिकल इंट्रैक्शंस हैं और हमारे पास एक सेल बन रहा है और सेल से लिविंग बीइंग बनता है फ्रॉम यूनिसेलर टू मल्टीसेलर, तब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके की हमें कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा. लेट अस नाउ डेल्व इनटू इट. नंबर वन चिल्ड्रन इज़ ग्रोथ. जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि ग्रोथ कैसा है नेचर में. इट इज़ परमानेंट. एक बार ग्रोथ हो गई तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. सो इट इज़ परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज. अब ये परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज किस फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी इन द साइज ऑफ सेल. अगर साइज ऑफ सेल बढ़ गया तो छोटा तो नहीं होगा. उसकी अगर शेप मेच्योरिटी पे अटेन हो चुकी है देन इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम एज वेल. इन द सेम वे हमारे पास हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करेंगे. अगर हमारे पास किसी ऑर्गन में एक सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स हैं तो हम कम तो नहीं कर देंगे. इन द सेम वे वी टॉक अबाउट ड्राई वेट, वी टॉक अबाउट मास. तो इस तरीके से हम बात करते हैं ग्रोथ की. ना चिल्ड्रन व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ, ग्रोथ हमारे पास प्लांट्स में भी हो रही है और ग्रोथ हमारी एनिमल्स में भी हो रही है. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ इन बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स? तो यू मस्ट हैव सीन कि हमारे पास एक 100 ईयर ओल्ड भी अगर हमारे पास प्लांट है तो उसमें फ्लावरिंग होगी, उसमें ग्रोथ होगी. तो इसका मतलब जो ग्रोथ है इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज़ थ्रू आउट द लाइफ, हमेशा ही होती रहती है. क्यों होती रहती है? यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स. यस, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं? एक्टिवली डिवाइड करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट ओनली सेल्स योर प्लांट्स आर गोइंग टू शो द continuous growth throughout the life. But when we talk about animals, यहाँ growth क्या है? It is up to a certain age. Certain age तक तो growth होगी animals की, उसके बाद होना बंद हो जाएगी. उसके बाद it will be showing repair and maintenance. तो इसके बाद मेरे पास रिपेयर होगा और मेंटेनेंस होगा किन चीज़ों का? ऑफ
worn out cells. ठीक है, so this is how we talk about the growth. Let us talk about one more thing, and that is डेवलपमेंट ना। ग्रोथ से भी हमें एक ही बात समझ में आ रही है और डेवलपमेंट में से भी। बट चिल्ड्रन, डेवलपमेंट सिर्फ किसी एक चीज़ तक नहीं रुका है। डेवलपमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द चेंजेस। जितने भी बॉडी में हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। कहाँ पे हो रहा है? अब ये डेवलपमेंट कैन अकर हमारे सेल में हो सकता है, किसी ऑर्गन में हो सकता है, और कब तक होगा कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है जैसे हमारे पास ग्रोथ में होती है। इट कैन हैपन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ हमारे पास डेवलपमेंट होता ही रहेगा। यस, सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब इसके अलावा डेवलपमेंट और ग्रोथ के अलावा भी हमारे पास और चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, ग्रो करना है। तो चिल्ड्रन, दैट इज डेफिनेट शेप एंड साइज। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि उसकी शेप हर बार बदलती रहेगी, उसका साइज हमेशा चेंज होता रहेगा। नहीं, एक ऑर्गेनिज्म के हमारे पास जिस तरीके के सेल्स रिक्वायर्ड हैं उसी तरीके से हमें जो है डेफिनेट शेप एंड साइज मिलेगी। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, they are called as morphous and other are called as amorphous. Then fourth is organization. हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ लिविंग ऑन दिस प्लानट अर्थ, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन होगा। चीज़ें यहाँ पे एक ऑर्डरली सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगी। अगर चीज़ें हमारी ऑर्डरली सीक्वेंस में नहीं प्रेजेंट होती हैं, सो देयर इज़ गोइंग टू बी वेस्टेज। हम एक प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब वी हैव सीन दैट कि हमारे पास एटम्स होते हैं, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। और यहीं से हमारे पास शुरुआत हुई थी सेल ऑर्गेनल्स बनने की। और बेसिकली यहीं पे सेल ऑर्गेनल्स के इंटरेक्शन से, इन केमिकल्स के इंटरेक्शन से लाइफ बनी थी। फिर इन सेल ऑर्गेनल्स ने अपने आप को एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से अरेंज करके हमारे पास सेल बनाया था। ये जो सेल है हमारे पास, इसने अपने आप को जब अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, इट फॉर्म द टिश्यूज। Tissues performing similar functions, they form the organ. Organ ने मिलके क्या बनाया? Organ system. And finally, when all the organs they were working in synchronization, हमारे पास एक organism बना। और ये organism जो है, एक जैसे organisms के ग्रुप को हमने population बोला, और बहुत सारी different group of populations को हमने बोला community। जैसे कि सारे ह्यूमंस एक जगह खड़े हों तो वो पॉपुलेशन है, बट ह्यूमंस के साथ डॉग्स भी हों, कैट्स भी हों, हाउस फ्लाई भी हो, फिशेस भी हों आसपास, तो कम्युनिटी बनाते हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स, और हमें इस तरीके से एक इकोसिस्टम मिलता है। और ये इकोसिस्टम फाइनली बनाता है बायोस्फीयर, जो कि डिसाइड करता है लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। सो दिस इज़ दैट वी टॉक अबाउट। अब एक और नेक्स्ट कैटेगरी है जहाँ से हमें लगता है कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग हो सकता है, और इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? ये हमारे पास एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वेदर इट इज़ योर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और अ मल्टीसेलर मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन, उसे मेटाबॉलिज्म शो करना ही होगा। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब दैट थिंग इज़ नॉट लिविंग। सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? हमें समझ में आता है कि मेटाबॉलिज्म वो चीज़ है जहाँ पे हमारे पास सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस।
अब बायोकेमिकल, सिर्फ केमिकल तो आउटसाइड एनवायरनमेंट में हो गए, जो बॉडी के अंदर हमारे पास हो रहे हैं रिएक्शंस, उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और बॉडी के अंदर कहाँ? अकरिंग विद इन द सेल। So this is about metabolism. Now we need to understand metabolism is of two types. Number one is anabolism and number two is catabolism. Now children, anabolism refers to जहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ क्या हो रही है? सिंथेसाइज हो रही है। और यहीं पे अगर हमारे पास किसी चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम उसे बोल देते हैं कैटाबॉलिज्म। सो हमारे पास एनाबॉलिज्म का मतलब हो गया इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म। कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पे कोई चीज़ का ब्रेकडाउन होना मतलब इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। एनाबॉलिज्म में जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ योर क्लोरोफिल पिगमेंट, प्लांट्स कुछ बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास? एनाबॉलिज्म। इन द सेम वे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, मिलके प्रोटीन बना रहे हैं, दिस इज एनाबॉलिज्म। इसी तरीके से एटीपी का ब्रेकडाउन होता है इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये हमारे पास ब्रेकडाउन रिएक्शन है। आरबीसी की शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गए, तब उनका ब्रेकडाउन कराना है हमें स्प्लीन में, ताकि नए आरबीसीज बन सके और पुरानों को हम रिमूव कर दें। तो दिस इज ऑल्सो अ ब्रेकडाउन रिएक्शन। नाउ लेट अस सी चिल्ड्रन another thing which is a characteristics of being a living organism. अगर हम बात करें तो इसमें वी टॉक अबाउट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ना, मूवमेंट उन चीज़ों में होगा जहाँ पे वो चीज़ें स्टेशनरी हैं। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ही जगह रूटेड रहते हैं, इनको कहीं पे मूव नहीं करना है। इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो जो है कंपैरेटिवली लेस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एनिमल्स। तो इनमें जो है मूवमेंट होगा, मूवमेंट जैसे कि विंड आई और लीफ जो है मूव करे। इसी तरीके से जो फूड है उसका जो है ट्रांसलोकेशन हो रहा है। कौन कराएगा ट्रांसलोकेशन? हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम। तो ये हमारे पास मूवमेंट के एग्जाम्पल है। लोकोमोशन किन में होगा? लोकोमोशन वुड बी सीन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स हमारे पास क्यों देखेंगे? क्योंकि इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है, इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए ज़्यादा एनर्जी? क्योंकि इन्हें फूड ढूंढना पड़ता है, फूड खुद से नहीं बना रहे, दे आर डिपेंडेंट अपॉन दी अनदर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फूड के अलावा इन्हें शेल्टर चाहिए, इन्हें मेटिंग करनी है तो इन्हें जो है रोम अबाउट करना पड़ेगा, इनको अपनी एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी उस प्रोसेस में। एंड फाइनली टू टाइड ओवर दी अनफेवरेबल कंडीशंस। ये सब करने के लिए हमारे पास एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, और जब भी कोई एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाता है उसी को हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो इसीलिए लोकोमोशन इज बीन सीन इन दी एनिमल्स। अब ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में मूवमेंट नहीं हो रहा, इवन आर ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड्स इज ऑल्सो मूवमेंट। तो मूवमेंट भी होगा एनिमल्स में और लोकोमोशन भी होगा। नाउ इसी तरीके से चिल्ड्रन, नेक्स्ट थिंग इज वी टॉक अबाउट इज रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक बात है, बट ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं जिनको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ऑफ सिमिलर काइंड। ये ध्यान रखने वाली बात है,
सिमिलर काइंड का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास अ कैट इज गोइंग टू गिव राइज टू अ कैट एंड नॉट अ डॉग. अ हाउस फ्लाई इज गोइंग टू गिव राइज और गिव birth to the next offspring, that is a housefly only, not a mosquito. So इस तरीके से ये बात हुई. Next thing that we need to remember is that reproduction is not essential for survival. ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो रिप्रोड्यूस करे. नहीं भी रिप्रोड्यूस कर रहा है तो भी इट इज़ गोइंग टू लिव अ हैप्पी फुल फ्लेज लाइफ. जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कपल्स हैं जिनके अंदर क्या है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं. तो क्या वो सर्वाइव नहीं करते हैं, क्या वो जॉब नहीं कर रहे, क्या वो खा पी नहीं रहे, कर रहे हैं सब कुछ, एवरीथिंग लाइक एनी अदर नॉर्मल कपल. तो ये हो सकते हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आर नॉट विलिंग टू हैव चिल्ड्रन, तो उनमें भी हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट करती है. एंड इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे हमारे पास स्टेराइल इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं. जैसे कि लेट अस टेक वन एग्जांपल. हमारे पास मान लेते हैं कि एक हॉर्स है. ये हमने कौन सी हॉर्स ली है, एक फीमेल हॉर्स ली है जिसे हम मेयर बोलते हैं. और इसको हमने रिप्रोड्यूस करवाया, मेट कराया विद अ डंकी. अब डंकी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसको मेल होना पड़ेगा. इसे हम बोलते हैं जैक. अ मेल डंकी इज कॉल्ड अ जैक. इससे जो ऑफस्प्रिंग बनता है रिप्रोड्यूस होके वो म्यूल है. और म्यूल कैसा होता है, ये स्टेराइल है. इट डजेंट प्रोड्यूस एनी ऑफस्प्रिंग. बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सर्वाइव नहीं कर रहा है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. नाउ लेट अस सी एक और कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज होम्योस्टासिस. नाउ होम्यो मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर हैविंग मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल. कौन सा एनवायरमेंट, ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर का. सो कांस्टेंट एंड फेवरेबल एनवायरमेंट नीड्स टू बी मेंटेन फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ताकि हमारी बॉडी फंक्शंस नॉर्मली. तो इसके लिए जैसे हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में जैसे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, हमारे पास थर्मो रेगुलेशन है. हम अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं. इसीलिए व्हाट वी आर कॉल्ड एज द वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है. तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, कांस्टेंट. हम मेंटेन करेंगे एक कांस्टेंट आयनिक बैलेंस. क्योंकि अगर आयनिक बैलेंस हम अपने फ्लूइड्स का नहीं मेंटेन करेंगे सो दिस विल लीड टू दी सीवियर रिpercussions. इसी तरह से चलो नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं वी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. सो अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, ताकि हमारे पास सराउंडिंग से अगर कोई भी हमें स्टिमुलाई मिल रहा है उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग वी शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन हमारे पास है एजिंग. ना व्हेन वी टॉक अबाउट एजिंग, एजिंग में हम बात करते हैं कि धीरे धीरे अब हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं दे स्टार्ट टू शो सम काइंड ऑफ चेंजेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, we'll use the word progressive decline or the deterioration. किस चीज़ का, in structure and function of organs within an organism. So in this condition what happens is we are going to show aging. इसी तरीके से another thing is an organism needs to adapt.
सो इट मस्ट शो अडेप्टेशन टू द सराउंडिंग चेंजेस। अडेप्टेशन कैसा हो सकता है? इट कुड बी शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन और अ लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। अगर हम शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन की बात जैसे कि वी टॉक अबाउट हाइबरनेशन। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस व्हाट दे डू इज दे अंडरगो विंटर स्लीप, and in the same way some of the organisms they undergo summer sleep, and this summer sleep we call it as estivation। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन जैसे कि हमारे पास क्या हो गई, ऑस्ट्रिच की हो गई। ऑस्ट्रिच ने अपने आप को किस चीज़ के लिए डेवलप कर लिया? क्योंकि विंग्स तो है नहीं उड़ने के लिए, तो उसने अपने आप को रनिंग के लिए डेवलप कर लिया। देन इन द सेम वे हमारे पास वुड पैकर है, तो वुड पैकर ने अपनी जो है बीक को एडवांस कर लिया ताकि वो उसको क्या कर सके, अपना नेस्ट बना सके। देन फाइनली कोई भी अगर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुई है तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू शो दी डेथ। और अगर वो डेथ शो कर रहा है इसका मतलब देयर इज एन अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ functions of life. So, the ultimate termination of functions of life is called as the death। और डेथ क्यों होती है? ताकि वी आर एबल टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, देयर शुड बी द रिसाइकलिंग ऑफ द मटीरियल्स। सो चिल्ड्रन दीज वर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी टॉक्ड अबाउट कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए। I hope these topics are very easy and understandable to you. We'll meet for the part 2 of this in the next class. Thank you.